Hello students. Today we are going to learn about subject e-accounting and is also covered in basics of IT and e-accounting. So for two subjects this material is very useful, and in that unit 1 chapter 1 is for information processing system. But remember student, this study material is not exhaustive. These are only guidelines. Students are requested to refer the textbook, that is reference book. Now today we are going to cover this some of the topics, and we I am going to ask some MCQ questions, frame MCQ questions in that, and you have to try to give answer for those MCQs which which enhance your knowledge. So after some point of time, completion at the completion of one topic, we are going to ask some MCQ from it, and you have to give the answer for the same. So watch the video till end, understand it properly, and then try to give the answer. I will ask MCQ in between the videos at completion of one topic. So stay tuned for whole video. Now first topic that we are going to cover here is information processing. Information processing is described as a process that can change information into a meaningful form. So what is a information processing? So you can say that any information which is converted into a meaningful form is information processing. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं. द टर्म इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अप्लाइड टू कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेशन ऑल्सो. तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो ऑपरेशन होता है उसमें ये अप्लाई होता है. It refers to a process where the digital information is manipulated by computers and other digital electronic equipments. ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उससे वो मैनिपुलेट होता है और उससे हमको ये समझ में आता है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड्स, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए. उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिज़नेस सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क. With the help of this four, you can convert any information into meaningful form. So अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए. नाउ टूल्स यूज इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो हमें सबसे पहले क्या टूल्स यूज होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कौन से टूल्स यूज होता है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ कलेक्टिव टर्म दैट रिफर्स टू मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. द डेटा प्रोसेस इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोज एंड ऑडियोज. The various tools that are required in information processing are as follows. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कोई भी हो, टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और या ऑडियो के फॉर्म में, तो आपको इतना टूल्स चाहिए. पहला तो सबसे पहले चाहिए आपको डेटाबेस. इट इज कंसिडर वन ऑफ द इसेंशियल टूल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर, मैनेज, प्रोसेस एंड इफेक्चुअली retrieve information. The database is often called structure collection of information. So database is nothing but it is a structure collection of information. This line is very important. So what is database? So database is a structure collection of information. The common type of database are hierarchical, flat model, rational and network. जो कॉमन टाइप्स है डेटाबेस का वो हायरार्किकल भी हो सकता है, मीन्स 1 2 3 ऐसा, फ्लैट मॉडल भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है एंड नेटवर्क के फॉर्म में भी हो सकता है. Then second tool required for processing information is data search engine. It is an information processing tool that can retrieve required data from the database. तो डेटाबेस में से डेटा निकालने का काम कौन करेगा? सर्च इंजन करेगा. सर्वर, द टर्म सर्वर रिफर्स टू अ पीसी एंड इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कोई भी सर्वर में दो चीज होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जिस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हार्डवेयर है, जो आपकी तरफ आप उसको पढ़ रहे हो वो सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ रहे हो. इट इज पॉसिबल टू शेयर फाइल्स ऑन ए सर्वर विद इन ए नेटवर्क. और आप ये सर्वर की मदद से ही आप नेटवर्क के अंदर फाइल को शेयर कर सकते हो. देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? दिस टूल प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स,
and financial accounts to help in the decision making process. It is essential for internal management as well as external parties like taxation and regulatory personnel. मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो किसके लिए हेल्पफुल बनता रहता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल पार्टीज है और रेगुलेटरी बॉडीज है, टैक्सेशन अथॉरिटीज है, उनको ये डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, another tool used in information processing, is a geographic information system that includes software and hardware that retrieve, analyze, manage, and store geographic information. It includes both stored data and the operating personnel. तो यहाँ पे स्टोर डेटा का भी यूज होता है और ऑपरेटिंग पर्सनल का भी यूज होता है। ये एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपको अलग अलग टूल्स बता रहा हूँ कि जैसे कैसे काम कर रहा है, सर्च इंजन चाहिए आपको, डेटाबेस चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, फिर एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है। एंटरप्राइज सिस्टम में ये होता है कि द एंटरप्राइज सिस्टम्स आर इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स दैट यूज आइडेंटिफायर्स in their application to integrate stored data from one enterprise system to another to other such systems। यानी एक ही एंटरप्राइज में एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए एंटरप्राइज सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन टूल्स है, टूल्स यूज इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है कि व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो आपको ये लिखना है। इट कैन बी आस्क्ड इन 5 टू 7 मार्क्स। तो अगर ये आपको 5 टू 7 मार्क्स में आ सकता है और आपको ध्यान से इसको आंसर देने की कोशिश करना है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको उसका आंसर देने हैं।